Okay, hello everybody. I hope you can see the screen and you can hear me as well, right? Everybody, I hope you can see the screen and you can hear me as well. Okay. So let us just start. Yeah, good afternoon, everyone. So let us start with the homework which was given to you. I think it was in text exercise 1, 2, and 3, right? It was in text exercise 1, 2, and 3. So let us start with in text exercise 1. Okay, let us start with in text exercise 1. In text exercise 1, question number 1 to 5. Any doubt? Fine. And then 6 to 10. Fine. Okay. Coming to in text exercise 2. In text exercise 2, question 1 to 5. Okay. In text exercise 2, question 6 to 10. Okay. In text exercise 3, 1 to 5. अंशुमल तुम कौन से एक्सरसाइज से बोल रहे हो 1 2 या 3 अंशुमल इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 से बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 ओके जस्ट लेट मी चेक इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है ठीक है ठीक है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 question 4 given electrode potentials see you have been given electrode potential Fe3 plus is accepting an electron and it is forming Vedant is asking exercise question 1 ठीक है Vedant please wait the EMF E naught for this let's say half reaction is 0.771 volt similarly I2 is accepting 2 electrons and it is forming 2I minus the E naught for this reaction is 0.536 volt. So what they're asking you to calculate E naught for this reaction. Aditya, please wait. Let me write the equation first. Plus 2I minus gives 2Fe2 plus I2. तो देखो obviously everybody can see that they are both SRPs, right? यहाँ पर Fe3 plus is getting reduced to Fe2 plus and at the same time I2 is also getting reduced to I minus. So as you can see both the half reactions represent reduction only, right? Everybody please respond. दोनों reactions reduction ही represent कर रहे हैं. Is that clear? Okay, fine. तो अब देखो या तो तुम दो तरीके हैं या तो तुम रिएक्शंस उल्टे करके काम चला सकते हो या फिर डायरेक्टली एसआरपी माइनस ये कर सकते हो क्या बोलते हो उसको एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड डायरेक्टली हो जाएगा ये either you can also reverse equations and you can see the answer right तो तुम कर सकते हो likewise ठीक है which way see directly देखो higher SRP ये है so it will be the cathode and ये है lower SRP so it will be anode so simply you can calculate E naught cell as SRP cathode minus anode right so that way तुम्हारा E जो भी इसका E naught cell है वो cathode minus anode आ जाएगा हाँ ठीक it is 0.771 minus 0.536 so that is 0. जो तो दिया ही इनफैक्ट सॉल्व भी करके दे रखा है 0.235 वोल्ट सी होगा 2Fe2 प्लस लाने के लिए पोटेंशियल डबल नहीं होगा क्या नहीं होगा डबल अंशुमन ठीक है मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं देखो रिएक्शन लिख देते हैं ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन से 2Fe2 प्लस ठीक है ना इसको उल्टा कर लो आदित्य मतलब ये हायर एसआरपी वाला है कैथोड तो इसका रिडक्शन होना चाहिए जो कि हो रहा है ये लोअर एसआरपी का है
I mean I minus has lower SRP, right? So it should be oxidized, right? So it should be oxidized. So likewise, you can directly say that E naught cell will be higher SRP minus lower SRP. Fine. Aditya, is that clear? Okay. I hope that makes sense. Now coming to this, मतलब दूसरा तरीका भी है अपने पास. डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम करते आ रहे थे वैसे भी कर सकते हैं. इसके लिए ई नॉट सेल क्या है 0.771 और इसके लिए क्या आएगा एवरीवन, इसके लिए आएगा माइनस 0.536 वोल्ट, राइट? So if you directly add these reactions, if you directly add these reactions, then you'll get this reaction, like you'll get Fe3 plus 2I minus gives 2 Fe2 plus I2. Fine. So E naught cell, see you can directly see 2, let's say this is E3. So 2 times E3 is 2 times E1 plus 2 times E2. तो अभी तो directly add हो गया ना आदित्य, you can see it is directly E3 naught is simply E1 naught plus E2 naught और ये देखो माइनस आ रहा है. So don't you think we are getting the same expression? देख लो अभी सेम मिलेगा तुम्हें. 0.771 minus 0.536. So that is the answer. ठीक है? Everybody, I hope it is clear. Okay, fine. Okay. Vedant, what was your question? तुम्हारा क्वेश्चन क्या था एक्सरसाइज 2 में? You okay, your question is question number 1. Question number 1 है which of the following will increase the voltage of the cell? देखो क्वेश्चन क्या है, SN solid is reacting with 2 Ag plus aqueous. Aditya says scroll up. ठीक है लिख लो. Aditya done? You can take a screenshot if needed. Fine. Okay, now coming to this question. शांतनु ठीक है वेट करता हूँ. And now coming to this question, which is question 1. SN solid plus 2 Ag plus aqueous will give you SN2 plus aqueous plus 2 Ag solid. Fine. And this is the reaction. And the question is how, which of the following will increase the voltage of the cell? तो अब देखो E cell क्या आएगा, E cell आएगा E naught minus 0.06 by 2 log SN2 plus upon Ag plus का concentration का square. So we can write it is plus 0.03 log Ag plus square upon SN2 plus, right? So obviously you can easily see what are the things that will increase the voltage of the cell. वेदांत बताओ कौन सी चीज बढ़ाने वाली है? ऑप्शन ए लिखा है इंक्रीज इन साइज ऑफ सिल्वर रॉड. फर्क पड़ेगा क्या? वेदांत साइज ऑफ सिल्वर रॉड बढ़ा कर दो तो एक्टिव है ही नहीं. विल इट मेक एनी डिफरेंस? वेदांत प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. ओके फाइन. सो ए कैन नॉट बी द आंसर, राइट? सेकंड इट इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आयन. सॉल्ट ब्रिज आयंस का कंसंट्रेशन क्या नर्स्ट इक्वेशन में रिफ्लेक्ट होता है? वेदांत कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? नहीं होता. तो ए भी गलत है, बी भी गलत है. इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सी भी सही नहीं है. तो आंसर क्या होगा बताओ वेदांत? आंसर क्या है? आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, वोल्टेज कैन बी चेंज्ड. सी दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज योर एक्सप्रेशन. ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है. इसमें जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से ये चेंजेस तुम्हें दिखेंगे. ठीक है, लिखना है क्या ये? लिखना है वेदांत? इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किए थे डिस्कस.
Fine, let us come to in text exercise 3. Fine, एक सेकंड ना, in text exercise 3 ये है। in text exercise 3 में कौन सा क्वेश्चन? एक मिनट रुक जाना। in text exercise 3 में क्वेश्चन 4 थोड़ा सा समय लग सकता है, बीच बीच में रुक जाता है। जस्ट वेट अ मोमेंट, थोड़ा सेटिंग का प्रॉब्लम है, कर्सर डजंट सीम टू बी वर्किंग। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड यूज करूं? देख सकता हूँ, वन नोट ठीक है, बट इसमें आजकल काफी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं नए अपडेट में, बीच बीच में रुक जाता है। रुक जाओ, उस पर ब्लैक बोर्ड भी है। ठीक है, चेक कर लूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाइट बोर्ड। वेट वेट वेट, थोड़ा सा इसको दिक्कत है। एक सेकंड रुक जाना है ना। जस्ट मिनट। फाइन, यू कैन सी द स्क्रीन राइट? अभी आपको स्क्रीन दिख रही है ना? फाइन, इन टेक्स्ट 3। फाइन, कमिंग, बताइए क्वेश्चन 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 में। ओके, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 3। क्वेश्चन, अच्छा सीक्वेंस में 1 2 3 में बताइए, 1 2 और 3 में, 1 2 और 3 में 3। ओके, क्वेश्चन 3, द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो क्वेश्चन है, द ईएमएफ ऑफ द सेल पीटी H2 1 ATM H plus A is equal to X, salt bridge H plus A is equal to 1, then H2 1 ATM platinum solid। ठीक है एवरीबॉडी, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें तो एक्सप्रेशन लिखना है, राइट? सो लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फर्स्ट। एनोड H2 जाएगा 1 ATM से, 2H plus aqueous plus 2 electron, then cathode will be reduced
कैथोड विल बी रिड्यूस लेट से 2H प्लस, यहाँ तो 1 है तो 1 वाले को तो हम लिखते भी नहीं है ना एवरीबॉडी, यहाँ तो हम 1 वाले को लिखते ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब हमें करना क्या है, लेट अस सी दिस। यहाँ ये भी 1 है, ये भी 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन तो खैर कैंसिल हो ही जाएगा। तो 2H प्लस लेट से 1 ATM से जा रहा है 2H प्लस कॉन्सेंट्रेशन X में, राइट? तो E सेल होगा E नॉट 0 है, माइनस 0.06/2, ये आ जाएगा क्या, X स्क्वायर, राइट? एंड E दिया हुआ है आपको 0.59 दिया है, 0.59 दिया है तो और आसान है, हम डायरेक्टली -0.0591/2 ले सकते हैं इनटू log X स्क्वायर, राइट? तो अब देखो ये तो चला जाएगा, कितने से कैंसिल होगा, 10 से, राइट? सो इट विल बी 10 एंड दिस विल बी, ये कट जाएगा, माइनस log x, तो माइनस log x इज H प्लस, राइट? तो ये तो pH ही हो गया ना, माइनस log x। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? किसने पूछा था, रिया? इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर pH। रिया, कैन यू हियर मी? ओके फाइन। सो दिस इज योर pH and the value of pH is 10. This is actually 10 because this is negative logarithm of log x, which is the concentration. Next बताइए, लिखना है इसको, लिखना है, आगे स्क्रॉल कर दूं मैं? Okay. Question 4. What is the oxidation potential of half cell consisting of zinc electrode in 0.01 ZnSO4 solution? अरे नर्स्ट इक्वेशन यूज करो, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन 4 लिखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा है। So let's say zinc is getting oxidized into Zn2 plus 2 electron. Fine. So in this case we can directly see E cell, E naught cell दिया है आपका 0.763 minus 0.06/2 log Zn2 plus. So everybody just substitute the value it is given. So it is minus 0.03 log 10 raised to the power of -2. So ये क्या आएगा बताओ? ठीक है, तो ए आंसर आ जाएगा। 4 क्लियर है एवरीबॉडी? 4 क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 4 के बाद 5, अरे सब पूछ रहे हो अब तो। 4 के बाद 5, फिर 5 के बाद 6। ई नॉट सेल दिया है, अरे ये तो बड़ा आसान है। ई नॉट सेल का एक फॉर्मूला होता है 0.06/2 log k। अब तुम्हें n फैक्टर तो आ ही रहा होगा कि 2 कैसे आया, और ई नॉट सेल दिया ही है, k नहीं निकलेगा। अथर्व 5 इज वेरी इजी, ई नॉट सेल इज गिवन, चलो निकाल देता हूं मैं। 1.1 into 2 upon 0.06, this is log k. So k is 10 raised to the power of 2.2 upon 0.06. ठीक है अथर्व? नेक्स्ट बताइए, 5 के बाद नेक्स्ट बताइए। अरे उमंग 37 तो है ही नहीं यार इसमें, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 तक 37 कहाँ है? उमंग 37 बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज 3 में तो 10 ही क्वेश्चन है। अच्छा वो कैलकुलेशन में 37 आता है, ठीक है ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, question number 6, given delta G is minus NFE and delta G is minus RTLMK, the value of N is equal to 2 is most likely to be. Okay, see delta G naught आपको क्या दिया हुआ है? Delta G naught is minus NF E naught cell and delta G naught is minus RTLMK। ये तो ऑब्वियसली सही है, तो अब दोनों को इक्वेट कर दो, माइनस NF E naught cell is equal to minus RTLMK। तो ई सेल क्या आएगा? ई नॉट सेल वही आ जाएगा ना जो हमने निकाला है, RT/NF log k। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर?
यही आएगा ना RT अपॉन NF log K। अब यहाँ पर n दिया है आपको 2, ठीक है। तो अब E नॉट सेल जो है, सी एवरीबॉडी ग्राफ तो 0 से स्टार्ट होगा, इज दैट क्लियर? ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.03 बिकॉज n is 2, इट इज गिवन 0.06 by n होता है ना एवरीबॉडी, सो वी कैन राइट 0.03 into log K। अब देखो जब, लेकिन यहाँ इन्होंने प्लॉट किया है ln K के साथ, तो फिर तो हमें करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर इन्होंने प्लॉट किया है यानी 2.30 अलग है, तो RT अपॉन 2F log K टू द बेस E, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 पे सब्स्टिट्यूट करके देखो एवरीबॉडी, n इज इक्वल टू 2 पे ये क्या आता है, ये वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा एवरीबॉडी। RT बाई 2F देखिए निकाल के कितना आता है, ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। R देखो 25/3, T ले लो तुम 298 केल्विन एंड F इज 96500, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कितना आता है। बट सी ऑब्वियसली यहाँ तुम देखो एक चीज कि जैसे जैसे तुम ई सेल बढ़ाओगे तो ईएमएफ तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो ईएमएफ पॉजिटिव ही आएगा। तो जैसे जैसे के बढ़ेगा ई नॉट सेल विल बी पॉजिटिव, राइट? तो ई नॉट सेल पॉजिटिव हो सकता है, तो अब या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब देखो लो वैल्यू ऑफ स्लोप से यदि तुम इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप RT/2F आता है, तो स्लोप ही, लेकिन स्लोप के लिए तुमको फिर लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ln K की कुछ नहीं दिया वैल्यू, स्लोप जो है ना इसका स्लोप आएगा क्या, RT/2F। तो स्लोप के लिए तो हमें ln K की भी 2 वैल्यूज चाहिए होंगी, तो वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एक पैरामीटर और चाहिए यहाँ पे, कहीं ना कहीं हमको एक वैल्यू और चाहिए, तो क्वेश्चन में वो डेटा तो मिसिंग है। इज दैट क्लियर? कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट और चाहिए ln K का, क्योंकि एक 0 पॉइंट है दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट और चाहिए तभी निकलेगा, ये नहीं निकलेगा वैसे। हम ऐसे A और B दोनों में से कोई भी बता सकते हैं। स्लोप 1 से कम है ना सर? अरे लेकिन स्लोप 1 से कम तो दोनों में आ जाएगा, तुम n की कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि RT बड़ा है तो n और बड़ा होते जाएगा, तो और n 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, स्लोप तो हर केस में 1 आएगा, 1 से कम ही आएगा ना, ठीक है वराद? इसमें एक और पॉइंट चाहिए, अभी हम यही बोल सकते हैं या तो A होगा या B होगा, बिना एक और पॉइंट के हम नहीं बोल सकते। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें एक और पॉइंट चाहिए, 8th। अरे इसमें डेल्टा जी नॉट तुम्हें ई नॉट सेल दिया हुआ है 8th में आदित्य, तो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी नॉट होता है NF E नॉट, वही ना मैक्सिमम वर्क जो है जो हो सकता है। डेल्टा जी नॉट इज माइनस NF E नॉट, ई नॉट दिया है और n तुम्हें पता है, तो -2 into 96500 into 1.1 divided by 1000 कर लो, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। हाउ टू कैलकुलेट वर्क? अरे जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है वही वर्क सेल कर सकता है, इज दैट क्लियर? आदित्य जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है वही कम काम जो है वो कर सकता है, इज दैट क्लियर? तो डेल्टा जी नॉट ही पूछा जाए। देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज समटाइम्स मर्क्यूरस क्लोराइड, दैट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, आज हम पढ़ेंगे उसको। कैलोमल इलेक्ट्रोड होगा, कैलोमल इज Hg2Cl2, और अभी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट बताइए, 9th के बाद 9th अभी नहीं पढ़ा है, कैलोमल इलेक्ट्रोड भी एक रेफरेंस होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, if electrode dipped in two solutions of pH 3 and 6 and a salt bridge is connected, the EMF of the resulting cell will be। ओके देखो इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने लास्ट क्लास में किया ही था ना,
जैसे मान लो ये तुम्हारा प्लैटिनम सॉलिड है H2 1 ATM, ठीक है, यहाँ H प्लस है, ठीक है। अब इसमें pH 3 ले लेते हैं, लेट्स से pH इज 3, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे H प्लस pH इज इक्वल टू 6 से H2 1 ATM प्लैटिनम सॉलिड। एवरीबॉडी इसका एक्सप्रेशन याद है? इसको तो हमने कई बार डेराइव किया था कल की क्लास में, मतलब कल नहीं, लास्ट क्लास में। तो इसको करके दिखाऊं या कर लोगे? इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में काफी किया था। किसने पूछा था? करके दिखाऊं या फिर कर लोगे? करके दिखाऊं, ठीक है, प्रथमेश करके दिखाता हूं। एनोड में देखो क्या है, H2 1 ATM से कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। कैथोड में 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2 बन रहा है, ये भी 1 ATM। अब ये 1 ATM तो कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा 2H प्लस कैथोड से 2H प्लस एनोड। ठीक है प्रथमेश, यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना? यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ ई सेल आ जाएगा -0.06/2 लॉग H प्लस एनोड का स्क्वायर अपॉन H प्लस कैथोड का स्क्वायर। तो अभी आ जाएगा क्या, -0.06 लॉग H प्लस एनोड अपॉन H प्लस कैथोड प्लस 0.06 करोगे तो ये आएगा लॉग H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, H प्लस जो कैथोड हमने लिया है वो 10 की पावर -6 लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में pH 6 दिया है, और ये 10 की पावर -3 है, तो 0.06 इंटू -3 0.18 होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली -0.18। ठीक है, अब ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड देख लो तो ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है प्रथमेश, ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड देखो तो ऑप्शन ए बनेगा, बट इन्होंने इसका मतलब समझ रहे हो क्या किया है? इन्होंने जो प्लस में निकाला है इसका मतलब क्या किया है पता है? कैथोड और एनोड के पीएच इंटरचेंज्ड है, कैथोड और एनोड के पीएच इंटरचेंज्ड है, मतलब इन्होंने यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू 6 लिया है और यहाँ पे पीएच इज इक्वल टू 3 दिया है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड देख के फिर भी हम बता सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली कौन सा कैथोड बना है कौन सा एनोड बना है वो नहीं बता सकते ना, अनलेस गिवन। ठीक है प्रथमेश, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखो तुम्हारी इच्छा है, तुम पिछले चैप्टर सॉल्व कर सकते हो, बट तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो बुकलेट है इसमें क्वेश्चंस इजी हैं या डिफिकल्ट हैं? एवरीबॉडी, व्हाट डू यू थिंक, विच इज अ बेटर रेफरेंस? तुम्हारा ये जो बुकलेट है उसमें क्वेश्चंस इजी हैं, एन अवस्थी इज अ बेटर रेफरेंस, तुम चाहो तो उसको सॉल्व करो, बुकलेट में तो क्वेश्चंस इजी हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी। ओके ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ओके सो देखो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इन द लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। एवरीबॉडी, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का? याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? देखो हमने क्या किया था, एक 5 मिनट का मैं एक रिव्यू दे देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या था उसमें। हमने यही पढ़ा था कि जैसे होता क्या है, तुम्हारे पास ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन किसका है? जैसे तुमने सिल्वर रॉड, पहले एक बार सुन लो सब लोग, उसके बाद यदि डाउट होगा तो पूछ लेना। तुमने सिल्वर रॉड को AgCl सोल्यूशन में डाला, अब उसके साथ इसमें तुमने एडिशनली KCl भी डाल दिया, राइट? तुमने एडिशनली क्या किया है, KCl भी डाल दिया है। तो एडिशनली KCl डालने से एवरीबॉडी क्या होता है, एडिशनली KCl डालने से एवरीबॉडी क्या होता है, जो मेन हीरो आता है KCl, तो साइड हीरो मतलब AgCl ऐसे बिहेव करता है जैसे वो हीरो ही नहीं है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, एक कॉमन है ना आयन Cl माइनस। सो दैट इज वाई जो AgCl मतलब सोल्यूबल था वो अब इनसोल्यूबल हो जाता है, मतलब पहले हम सैचुरेटेड लिखते थे, हम AgCl को सॉलिड लिखते हैं। इज दैट क्लियर? फाइन, सो आई होप दिस मेक सेंस। और यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि Ag प्लस सोल्यूशन में होता नहीं है, एवरीबॉडी यहाँ पे ऐसा नहीं है
इस सोल्यूशन में Ag प्लस होता नहीं है, ये सोल्यूशन में होता है बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी, कॉमन एन इफेक्ट में जैसे हमने पढ़ा था, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस विल बी टेंडिंग टू जीरो बट इट विल नॉट बी जीरो, राइट? तो Ag प्लस है सोल्यूशन में बट बहुत कम है। तो हम लिखते कैसे हैं इसको? जैसे हम इसको कैथोड पे दिखाना चाहते हैं तो हम इसको रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि AgCl ने इलेक्ट्रॉन लिया, Ag बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ Cl माइनस। हम एक्चुअली में Ag प्लस लिखते नहीं है। एवरीबॉडी, हम क्यों नहीं लिखते AgCl? व्हाई डोंट वी राइट AgCl? सॉरी, Ag प्लस क्यों नहीं लिखते? द रीजन इज वेरी सिंपल, वी डोंट राइट AgCl बिकॉज नमन सेज इट इज स्पेक्टेटर आयन। सही बात है, ये एक स्पेक्टेटर आयन है क्या? ये That is not the reason. It is not a spectator ion. The reason is its concentration is very low. Correct, Varar. It is side hero. ठीक है, ये साइड हीरो है तो इसको हम भूल जाएंगे जब मेन हीरो आएगा तो। फाइन, नाउ लेट अस सी, इसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इसका रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे किया था? रिप्रेजेंटेशन जैसे कैथोड है तुम्हारे पास, ये कैथोड के फॉर्म में यदि हमने लिखा था लास्ट क्लास में, तो तुम लिख सकते हो कि KCl के प्रेजेंस में AgCl solid is getting converted into Ag solid, right? This can be its representation. फिर हमने इसके SRPs निकाले थे, याद होगा तो हमने इस रिएक्शन की SRP निकाली थी, राइट? एंड द SRP was E naught Cl minus के प्रेजेंस में AgCl, Cl minus के प्रेजेंस में AgCl to Ag is equal to E naught Ag plus to Ag minus plus RT by F log KSP of AgCl। एवरीबॉडी, इसमें कोई तकलीफ है? किसी को डाउट है? हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं, लिखना है तो लास्ट क्लास में हमने लिखा था ना। ठीक है, अच्छा, ये कैन वी डू द सेम रिएक्शन एट एनोड? ये रिलेशन तो आप याद रखिए, इट इज अ फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर इट, इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एवरीबॉडी, इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला एंड यू शुड रिमेंबर इट, ओके? फाइन, ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। एनोड वाला कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं एनोड, वही हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। एनोड में भी कर सकते हैं इसको। मान लो हमने इसको एनोड पे रख दिया, एनोड पे रख दिया तो क्या होगा बताओ? सिल्वर जीरो ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट हो जाएगा AgCl प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। इसका रिप्रेजेंटेशन हम पहले देख लेते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, Ag solid, just a minute, Ag solid is getting converted into AgCl in the presence of, let's say, KCl, HCl, you can take anything. So can you calculate this value, E naught Ag to AgCl in the presence of Cl minus? ये निकाल सकते हो जैसे पिछले केस में हमने निकाला था। 0.6, कहाँ 0.6? RT by N, अरे वहां RT by F लिखा है मैंने, कोई बात नहीं, तुम लिखो 0.06, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते। सेल रिप्रेजेंटेशन समझाऊं? अरे देखो हो क्या रहा है, सिल्वर, देखो आदित्य, सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है AgCl में, राइट? तो यहाँ पर तुम यदि समझने की कोशिश करो तो Ag जीरो से +1 में गया। अब यहाँ पे हमने AgCl लगा दिया, इसका मतलब क्या है? AgCl के साथ KCl लगाने का मतलब क्या है? KCl का मतलब है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, यदि हम KCl नहीं रखते तो ये सॉल्युबल सॉल्ट होता। आदित्य, इज दैट क्लियर? आदित्य, इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो हमने KCl ऐड किया है, इसका मतलब ये है कि इट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है? ये मैं तुम्हें जैसे ऐसा लिख देता, मैं जैसे मैं ऐसा लिखता, ये तो इनसॉल्युबल है, राइट एवरीबॉडी? ये इनसॉल्युबल है। जैसे आई कैन गिव यू अदर एग्जांपल्स एज वेल। तो मैंने लिखा Al सॉलिड से AlH होल थ्राइस सॉलिड और साथ में लिख दिया KOH, तो ये भी इनसॉल्युबल है। एक मिनट मुझे लिख देने दो, है ना? लाइकवाइज मैंने Fe सॉलिड लिखा, फिर मैंने लिख दिया FeOH होल थ्राइस,
ठीक है, फिर मैंने लिख दिया KOH, तो ये भी इनसॉल्युबल है। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? बट मैंने ऐसा लिखा Ag सॉलिड Ag2C2O4 सैचुरेटेड, तो ये तो सॉल्युबल है ना एवरीबॉडी? एवरीबॉडी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में अंतर समझ में आया? कैथोड में पहले लिखते हैं, एनोड में बाद में लिखते हैं। एवरीबॉडी कैथोड में पहले लिखते हैं और एनोड में बाद में लिखते हैं। तो ये कन्वेंशन मतलब एक लाइन लगा करके इस तरह से बनाना जो है, एक एक डंडा लगाते जाना, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस, नथिंग एल्स। वो बताता है कि नया सरफेस मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी सेपरेट। इज दैट क्लियर आदित्य? वो ये बस इतना बताता है कि नया सरफेस आता जा रहा है, और कुछ नहीं। तो कैन यू, आई होप यू कैन राइट द एक्सप्रेशन लाइक वी डिड इन द लास्ट ओकेजन। जैसे पिछले बार हमने लिखा था ना कि ई नॉट सेल जो निकाला था, मतलब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा? ई नॉट एजी से AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ Cl माइनस, ये हमको निकालना है। जैसे हमने पिछले बार निकाला था ना ये वाला एक्सप्रेशन, एवरीबॉडी ये वाला जो एक्सप्रेशन निकाला था, इस बार वो कैथोड के लिए निकाला था, इस बार एनोड के लिए निकालना है। एवरीबॉडी कैन यू सॉल्व इट? सोच सकते हो कैसे करोगे? हाँ आदित्य, गुड गुड। कहाँ पे? KSP माइनस RT/KF हो जाएगा ना एवरीबॉडी? ये आ गया सबका। दिस विल बी ई नॉट Ag से Ag प्लस माइनस RT/F लॉग KSP AgCl। ये सबका आया है नहीं आया? एवरीबॉडी ट्राई किया कितने लोगों ने? ये आ गया क्या एवरीबॉडी? हैव यू गॉट दिस रिलेशन? चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, कितने लोग का नहीं आया? कितने लोगों का नहीं आया? बहुत लोगों तो आ गया है, वेरी गुड। ओके, कितने लोगों का नहीं आया? ओके, प्रथमेश नहीं आया। एनीबॉडी एल्स? वेदांत नहीं आया, ओके। श्रेयांश नहीं आया, ओके फाइन। सी देखो, बड़ा आसान है। तुम्हें करना क्या है, जो एग्जिस्टिंग रिएक्शंस हैं उसके बेसिस पे नई वाले के लिए निकालनी है, राइट? तो अभी ध्यान से देखते हैं। देखो हमारे पास रिएक्शन क्या है, Ag प्लस Cl माइनस, ये एक्वस है, ये कन्वर्ट हो जाएगा AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। हमें इस रिएक्शन की EMF लिख दिया हमने E03 और इसके डेल्टा G को लिख दिया डेल्टा G03। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो। ये सबने लिख लिया था ना ऊपर वाला पार्ट एवरीबॉडी? ऊपर वाला पार्ट तो सबने लिख लिया था? नीचे स्क्रॉल कर लूं ना मैं? ओके ठीक है। अथर्व बोल रहा है नो। अथर्व कुछ छूट गया है तुम्हारा? अथर्व, तो शुड आई वेट और शुड आई स्क्रॉल अप? क्या करूं? वेट करूं? अप? ठीक है। और ऊपर करूं? ठीक है। डन अथर्व? हो गया? मिस्टर अथर्व शिंदे डन। ओके, सो एवरीबॉडी लेट अस कम डाउन एंड सॉल्व दिस। इसको कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हमें करना क्या, डेल्टा जी ही ऐड करना है। तो ये वाली रिएक्शन थी अपने पास। दूसरा क्या है, हमको ये चाहिए, यानी हमको सिल्वर चाहिए रिएक्टेंट में। तो हम क्या करेंगे, इस बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं। ये आ गया Ag से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए हम इसको बोलते हैं E01 और इसका डेल्टा G को हम बोलते हैं डेल्टा G01। देखो इस बार हमें AgCl कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए, तो हम इस बार उल्टा रिएक्शन लिखेंगे, यानी Ag प्लस और Cl माइनस गिव्स AgCl। और इसके लिए
जो E नॉट 2 आएगा और इसका जो करस्पॉन्डिंग डेल्टा G नॉट 2 आएगा, उसमें एवरीबडी कैन वी राइट E नॉट विल बी RT बाई F log 1 by KSP। ये वाली बात समझ में आ रही है एवरीबडी? ये बात समझ में आ रही है 1 by KSP क्यों लिखा? ओके, प्रथमेश को नहीं समझ में आ रहा है 1 by KSP क्यों लिखा। और किसी को दिक्कत है? Anybody else? Anybody else who could not understand why have we written 1 by KSP? देखो, पहली बात तो ये समझो कि हमको AgCl प्रोडक्ट में चाहिए था, हमें AgCl प्रोडक्ट में चाहिए था, राइट? सो प्रोडक्ट में चाहिए था, इसलिए हमें रिएक्शन उल्टा करना पड़ा। AgCl का डिसोसिएशन में KSP डिफाइन होता है, बट हमें इस वक्त प्रोडक्ट में चाहिए, इसलिए हमने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया। अरे ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें AgCl डिसोसिएट होता है उसको KSP बोलते हैं, तो हमने रिएक्शन उल्टा किया। सो एवरीबॉडी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स नहीं, मतलब इनवर्स नहीं होगा क्या? एवरीबॉडी, जब हमने रिएक्शन रिवर्स किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स होगा क्या? प्रथमेश, डज दैट मेक सेंस? समझ में आ रही बात? फाइन, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। हमने रिएक्शन को उल्टा कर दिया है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले KSP था, अब लिखेंगे 1 अपॉन KSP। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, सो अब देखो, इसको कैंसिल कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? Ag solid plus Cl minus aqueous gives AgCl solid. So let's say this is the delta G3 we are talking about. So delta G3 naught can be written as delta G1 naught plus delta G2 naught. And let's say delta G3 naught will become, obviously n is 1, so minus f तो कट जाएगा ना, minus 1 into f हर केस में कट जाएगा। तो minus E3 naught can be written as let's say E naught Ag plus say sorry Ag से Ag plus sorry plus RT by F log 1 by KSP। fine, so we can rearrange it as, इसको हम rearrange कैसे कर सकते हैं? E naught Ag से AgCl in the presence of Cl minus is E naught Ag to Ag plus minus RT by F log KSP of AgCl। अब इसमें किसी को समझने में तकलीफ है, कोई समस्या है तो you can just let me know about it। RT by F is 0.0591। I know that प्रथमेश, ठीक है, लिखो तुम 0.059, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है? ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है यदि तुम डेराइव कर सकते हो एग्जाम में तो, बट नॉर्मली याद करना चाहिए। दिस इज समथिंग यू शुड लर्न। एवरीबॉडी, ये लिख लिया सबने? Sir, Shantanu, what are you trying to ask? Just write it complete, write the complete sentence. यदि कोई दूसरा कंपाउंड है तो उसके लिए n फैक्टर चेंज कर देंगे। AgCl के लिए 1 है, जैसे RT by F लिखा है, मान लो हमारे पास ZnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ KCl होता तो RT अपॉन 2F लिखते। AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl होता तो हम RT अपॉन 3 लिख देते। ठीक है शांतनु? हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड होता MCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो हम RT अपॉन 4F लिख देते। कैथोड फॉर माइनस लगा के आंसर आ जाता। ठीक है, हम तो दोनों चीजें देख रहे हैं ना, डेल्टा जी अलग नहीं होता है, विल सी दैट, डोंट वरी अबाउट इट। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? अरे नहीं भैया, इसमें बहुत कुछ आता है, पहले धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या आता है क्या नहीं आता है, विल सी, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे आ रहा है धीरे धीरे चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या कैसे सवाल आएगा, वी विल सी दैट। ओके, अच्छा, यदि मान लो जैसे तुम्हारे पास कोई सेल है कुछ इस तरह का, हमारे पास कुछ इस तरह का सेल है, ये हाफ सेल ही है सपोज, Ag सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है AgCl सॉलिड में in the presence of HCl, this is let's say 0.5 molar, and you have been given E naught Ag to Ag plus is let's say minus 0.1 volt, KSP of AgCl
is 10 raised to minus 10. Calculate the E cell and E naught cell. मतलब for the above half reaction. For the above half reaction. ये एक बार ट्राई करो तो एवरीबॉडी, ये एक बार ट्राई करो सब लोग. क्वेश्चन समझ में आया? अथर्व पूछ रहा है हाउ द केएसपी गॉट रेसिप्रोकल. अथर्व तुम सुनते नहीं हो क्या? हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक, ये रिएक्शन जो है इसमें केएसपी रेसिप्रोकल कैसे हो गया? अथर्व यहाँ पे हम ऐसे रिएक्टिव थे, क्या लिखते थे, AgCl के डिसोसिएशन में Ag प्लस और Cl माइनस बनता है. रुक जाओ, एक बच्चे को सवाल, उसको समझ में नहीं आया कि 1/KSP हमने क्यों लिया. और यहाँ पे हमने रिएक्शन उल्टा लिखा है. सो व्हेन सी AgCl, ये जो रिएक्शन होता है ये जिसमें हम AgCl को डिसोसिएट कराते हैं Ag प्लस और Cl माइनस, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP होता है. हमने रिएक्शन रिवर्स किया है ना अथर्व, इज दैट क्लियर? हमने रिएक्शन रिवर्स किया है, यानी जो प्रोडक्ट में था उसको रिएक्टेंट में कर दिया है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्स्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड. और यहाँ पे इनवर्स किया हमने, इसीलिए इनवर्स हो गया. आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी. नाउ यू हैव द क्वेश्चन विथ यू, ट्राई टू सॉल्व इट. कोई पहले सॉल्व करके पहले आंसर दे देता है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. एवरीबॉडी हैज इट्स ओन स्पीड, अपने स्पीड से आराम से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, ठीक है? आपको ई नॉट सेल और ई सेल निकालना है इस गिवन हाफ रिएक्शन के लिए, ठीक है? आप RT/F को 0.6 ले सकते हैं, ठीक है? 0.06 मतलब वही 0.0591 होता है, तो उसको 0.06 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं. ई नॉट सेल कितना आया? ई नॉट सेल कितना आया? 0.49, 0.5, 0.5 आना चाहिए. एक सेकेंड. अरे ई नॉट सेल का तो ये फॉर्मूला है ना, ई नॉट सेल का तो ये फॉर्मूला है, ई नॉट Ag से Ag प्लस 0.06 log 10 raised to power minus 10. तो ये -0.1 प्लस -10 ये आएगा ना. तो ये तो 0.7 आना चाहिए ऑलरेडी. ओके जस्ट मिनट, दिस इज सॉरी दिस इज एनोड, हमने इसको एनोड दिया है आपको, सो इट विल बी 0.5 वोल्ट. सॉरी, दिस इज करेक्ट. 0.5 कितने लोगों ने दिया आंसर? हाँ ये एनोड है, ठीक है ठीक है, ये एनोड है. सो दे आर करेक्ट. एनोड में माइनस है ना, हमने निकाला तो है अभी, एनोड में माइनस होता है, ठीक है? ये वाला टर्म माइनस आएगा, ठीक है? E cell 0.482. ओके, E cell 0.482 देखना पड़ेगा सॉल्व करके, मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा. मैंने ऐसे ही रैंडम कोई भी वैल्यू दे दिया है, जो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है सौरभ? बट उतना नहीं आना चाहिए, 0.1 से ना 0.03. देखते हैं, बताते हैं. एवरीबॉडी रिटर्न, ये लिख लिया है सबने? इसमें किसी को डाउट है? ई सेल सबको समझ में आ गया कैसे निकालना है एवरीबॉडी? ई सेल निकालना मतलब ई नॉट सेल निकालना सबको आ गया? एवरीबॉडी ई नॉट सेल निकालना आ गया सबको? ई नॉट में तो दिक्कत नहीं है ना? ई नॉट सेल निकालना आ गया सबका? किसी को डाउट है इसमें? प्रथमेश तुम्हें समझ में आया? अथर्व तुम्हारा आ गया ई नॉट सेल? अथर्व एंड प्रथमेश तुम लोग का आंसर आया ई नॉट? Okay, fine. So how would you calculate E cell now? How would you calculate E cell? See, हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है? Ag solid
the presence of Cl minus aqueous will form AgCl solid plus electron. Now everybody समझने की हम कोशिश करते हैं कि E cell क्या होता है. E naught minus 0.06 upon 1 log, ये दोनों एक्टिव नहीं है, 1 by Cl minus, तो ये क्या आएगा 0.5 plus 0.06 log concentration of Cl minus. So it is 0.5 plus 0.06 log 1 by 2. Log 1 by 2. Is that clear? Everybody, is that clear? So that is minus 0.06 log 2. So that is 0.5 minus 0.06 into 0.3. तो आप बताओ क्या आएगा आंसर. It will be 0. जो भी है around I think 0.48 के आसपास है. ठीक है. एवरीबॉडी क्या आ रहा है आंसर, एक बार चेक कर लो. 0.48 के आसपास आएगा. 0.482. हाँ 0.482. ठीक है. प्रथमेश is asking to scroll up. और ऊपर करो प्रथमेश. Yeah, this much is fine. Prathamesh, is that fine? Okay. थोड़ा. Okay, done everyone. प्रथमेश क्वेश्चन लिख लिया तुमने, कर लिया आंसर सॉल्व. इसमें किसी को दिक्कत है, किसी को समझने में कोई तकलीफ है कैसे हमने निकाला, किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है हमने कैसे किया सॉल्व? अच्छा, कोई और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन? वेदांत बोल रहा है वापिस समझाओ. वेदांत क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? ई सेल कैसे निकालेंगे? अरे ई नॉट निकाला था हमने पिछले बार, जो निकाला था वो स्टैंडर्ड था. पिछले बार जो निकाला था वो स्टैंडर्ड था. वेदांत दो दो है. वेदांत यहाँ दो दो है ना, एक वेदांत फाड और दूसरा सिर्फ वेदांत है. तो अभी देखो हमने जो स्टैंडर्ड निकाला था उसके बाद हम ये जो नॉर्मल ई सेल निकालने के लिए फिर से नर्स्ट इक्वेशन लेना पड़ता है. इज दैट क्लियर? ओके फाइन. एवरीबॉडी, कोई और मेथड हो सकता है इससे आसान? एवरीबॉडी, इससे आसान कोई मेथड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. ठीक है. सी दूसरा मेथड 2. जरा बताओ ये मेथड ज्यादा आसान है या जो हमने पहले किया वो ज्यादा आसान था? हाँ बस सही है सौरभ, सही सोच रहे हो तुम. KSP से तुम Ag प्लस निकाल सकते हो. Ag से सॉलिड से AgCl गया है ना. HCl हमने रखा था 0.5 मोलर. एक मिनट पूरा लिख लेने दो मुझे, उसके बाद जिसको डाउट होगा पूछ लेना. KSP आपको दे रखा था 10⁻⁻10 और E नॉट दे रखा था Ag से Ag प्लस माइनस 0.1 वोल्ट. राइट एवरीबॉडी, यही दिया था ना, माइनस 0.1 ही दिया था ना. ठीक है, माइनस 0.1 ही दिया. जरा एक बात बताओ, यदि हम इसको ऐसे लिखें, एक मिनट रुक जाओ सब लोग, लिख लेने मुझे. Ag से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये गलत हो जाएगा? यदि मैंने ऐसा रिएक्शन लिखा तो क्या ये गलत होगा? मैंने बोला था Ag प्लस होता है बट टेंडिंग टू 0 होता है, लेकिन होता तो है ना. तो अब जरा देखो, AgCl डिसोसिएट होगा Ag प्लस और Cl माइनस में, और यहाँ पे HCl 0.5 है. तो इसका हम डायरेक्टली Ag प्लस मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 10⁻⁻10 लिख दें तो मुझे ये Ag प्लस मिल जाएगा 10⁻⁻10 अपॉन 0.5. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो हमें Ag प्लस कितना मिलेगा? 2 इंटू 10⁻⁻10. तो कैन वी राइट नाउ डायरेक्टली ई सेल क्या लिखेंगे हम? माइनस 0.1 माइनस 0.06 अपॉन 1 इंटू लॉग KSP विच इज 2 इंटू 10⁻⁻10. तो अब देखो ये क्या आता है, माइनस 0.1 माइनस 0.06 log 2 माइनस 10. राइट, तो देखो ये क्या आएगा, माइनस 0.1 एंड दिस इज 0.06
एंड दिस इज 9.7। ये प्लस में हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अब देखो तो कितना आता है, पहले जितना आया था उतना ही आ रहा है क्या? सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। इज इट गिविंग यू द सेम रिजल्ट? एवरीबॉडी यू कैन जस्ट चेक, इज इट गिविंग यू द सेम रिजल्ट और इज इट गिविंग यू अ डिफरेंट रिजल्ट? सेम दे रहा है ना, तो ये वही वैल्यू आएगा 0.482। तो ऐसे भी तो कर सकते हो। अब तुम्हें ये ज्यादा आसान लग रहा है या see I'll tell you Saurabh, I'll tell you what are the limitations of various methods. I will tell you, तुम्हें ये ज्यादा आसान लग रहा है या पुराना वाला मेथड ज्यादा आसान लग रहा था? Which one is more easy? बट इसकी दिक्कत क्या है पता है? इससे स्टैंडर्ड नहीं निकलता। मतलब स्टैंडर्ड मतलब ई नॉट सेल नहीं निकलेगा इसका। इस मेथड में दिक्कत ये है कि इससे ई नॉट नहीं निकलता है। एवरीबॉडी, इससे ई नॉट नहीं निकलेगा, इससे सिर्फ ई सेल निकलेगा। बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशंस पे थोड़ी केस पे डिफाइन होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं डिफाइन होता है। तुम देख लो पिछले मेथड में हमने ई नॉट सेल भी निकाला था, ई सेल भी निकाला था। ये मेथड इजी जरूर है, इसमें समय कम लगता है, बट इससे ई नॉट नहीं निकलता। फिर तुम्हें ई सेल भी चाहिए तो ई नॉट निकलेगा। ठीक है, तो मेथड्स के कुछ कुछ लिमिटेशंस भी, कुछ अच्छी बातें भी है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो, सबको समझ में आया या नहीं आया? इसमें किसी को तकलीफ है, कोई समझने में दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अच्छा मान लो मैंने तो ऐसे एजी सेल की बात करी थी। मान लो मैंने एक ऐसा एनोड बना दिया Zn सॉलिड से ZnCl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये ले लिया मैंने 0.5 मोलर। KSP मैंने तुम्हें दे दिया ZnCl2 का लेट्स से 10⁻⁻8। E नॉट Zn से Zn2 प्लस तुम्हें मैंने दे दिया है 0.6। तुम इसका EMF निकालो। एवरीबॉडी, कैन यू कैलकुलेट इट्स E सेल? ये नया क्वेश्चन है, हाँ, दिस इज अ क्वेश्चन। एवरीबॉडी, दिस इज अ क्वेश्चन। तुम इसका ई सेल निकालो। ठीक है, अब ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एवरीबॉडी हैज इट्स ओन स्पीड। तो कोई यदि पहले आंसर देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ई और ई नॉट आपको दोनों निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट ई सेल एज वेल एज ई नॉट सेल। एन फैक्टर सोचो इस बार क्या है शांतनु? कौन सा ई नॉट? इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ई नॉट, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ई नॉट। मेटल इनसॉल्युबल। अच्छा ये बताओ, ये इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल है? एवरीबॉडी, ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? एवरीबॉडी, इज इट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? ये तो बताओ। इनसॉल्युबल है ना? तो ठीक है, अब ट्राई करो एक बार। E cell 0.804 and E naught. Saurabh, what is E naught? Okay, E naught 1.08. Okay, fine. See, इसके लिए E naught, let's say Zn solid से ZnCl2 solid in the presence of Cl minus will be E naught Zn से Zn2 plus, and since it is oxidation, so it will be minus 0.06 by 2 into log Ksp of ZnCl2. एवरीडे, इस बार समझ में आया हमने 2 क्यों बाई 2 क्यों किया? क्योंकि इस बार इसका एन फैक्टर 2 है, इसलिए हमने 2 किया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, इसका एन फैक्टर 2 है इसलिए हमने 2 कर दिया। एन फैक्टर 3 रहता तो हम 3 कर देते। इज दैट क्लियर? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि हमने 2 क्यों लिखा है?
हाँ बाकी देखेंगे ना, बाकी ई नॉट में भी 2 आएगा ना, ऑब्वियसली ऑब्वियसली सब में 2 आएगा ही शांतनु, बिल्कुल आएगा, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या है, ये 0.6 वोल्ट आया, तो ये आया माइनस 0.03 इंटू लॉग 10⁻⁻8, तो ये आया कितना 0.6 प्लस, तो 0.84 वोल्ट आया। एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है 0.84 वोल्ट में? एवरीबॉडी 0.84 में किसी को कोई डाउट है? ओके, तो अब ई सेल निकाल लो, ई सेल निकाल लो, ई सेल तुम जिस मेथड से सही लगता है उस मेथड से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो शांतनु, क्या डाउट है? अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे वो E3 है, तो मतलब पहले अपन डेल्टा J3 लिख रहे थे ना वहाँ पे, डेल्टा G3 इज इक्वल डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, तो उससे माइनस NF लिखेंगे ना, तो N फैक्टर वहाँ पे भी आएगा ना? मैं एक बार डिराइव करके दिखा दूं इसको तुम्हें? हाँ सर, मतलब शॉर्ट ठीक, में बता दो एक बार। ठीक है, डिराइव कर देते हैं, ठीक है, इसको डिराइव कर लेते हैं हम लोग एक बार। सी हमें ये रिएक्शन चाहिए ना, हमें एनोड पे जो रिएक्शन चाहिए एवरीबॉडी, वो रिएक्शन ये चाहिए, Zn सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ 2Cl माइनस, ठीक है, एक्वस विल फॉर्म ZnCl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको अपन पकड़ लेते हैं डेल्टा G3 नॉट, फाइन। अब हमें क्या है, एक रिएक्शन Zn तो हमें रिएक्टेंट में चाहिए ही, तो हमने लिख दिया Zn से Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने डिफाइन किया, इसको E3 नॉट बोल देते हैं, E3 नॉट है ना, इसको हमने डिफाइन किया E1 नॉट और डेल्टा G1 नॉट, ठीक है, चलेगा। अब देखो हमें तो चाहिए ZnCl2 प्रोडक्ट में, तो हम तो उल्टा रिएक्शन लिखेंगे इस बार। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी, तो इसका जो E2 नॉट होगा वो क्या आएगा, RT बाई 2F log 1 बाई KSP। अब इनको ऐड करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा Zn solid plus 2Cl minus and that will give you ZnCl2 solid plus 2 electron। तो तुम्हें नहीं लगता ये E3 नॉट मिल जाएगा? एक से मैं पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद पूछना जो डाउट। देखो n फैक्टर तो हर केस में दो दो है ना, n फैक्टर तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है, क्योंकि तीनों एक तरह से सेम ही रिएक्शन है, तो n तो कैंसिल हो जाएगा शांतनु, इज दैट क्लियर? शांतनु n तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो अब n का कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि n तो हर केस में दो है, मैं डायरेक्टली ऐड करके नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा क्या, E नॉट Zn सॉलिड से ZnCl2 सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ Cl माइनस, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा E नॉट Zn से Zn2 प्लस, और ये चूंकि माइनस है 1 बाई KSP है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा RT बाई 2F log KSP। शांतनु क्लियर है या डाउट है? ठीक है, और किसी को डाउट है तो अब बाकी लोगों ने ई सेल निकाल लिया, एवरीडी ई सेल निकल गया क्या? ई नॉट सेल आ गया होगा, ई नॉट सेल तो निकाले हमने 0.84। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो हमने ई नॉट सेल तो निकाल लिया है, अब हम ई सेल की बात कर लेते हैं। सी हमारा जो ई सेल आएगा वो किस तरह से आएगा, ई सेल विल बी ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई 2 log 1 बाई Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, तो ये आएगा ई नॉट प्लस 0.03 log Cl माइनस का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, अब तो Cl माइनस आपको 1/2 दे ही रखा है, तो हो जाएगा ना एवरीबॉडी, एवरीबॉडी तो हो जाएगा ना। अच्छा, लॉग टर्म गेट्स जीरो, लॉग टर्म जीरो हो रहा है क्या एवरीबॉडी?
लॉग टर्म 0 कैसे होगा यशराज? अरे वो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1/2 दिया है, तो वो 0 कैसे हो गया? वो ZnCl2 से थोड़ी डिसोसिएट हो रहा है। एवरीबॉडी तुम Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1 लोगे या 1/2 लोगे? एवरीबॉडी Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1/2 लोगे ना, तो 1/2 स्क्वायर कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो 1/4। प्लीज डू बाय मेथड 2 वंस। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, कर देता हूँ। एवरीबॉडी ये सबने लिख लिया? हाँ 0.84 ही तो आया है कथन, जीरो हमने E0 निकाला तो है, देखो ना ऊपर लिखा ही तो है हमने, देखो E0 निकाला है ना हमने 0.84। ओके, फाइनल आंसर ई सेल निकालना है थरो। ई सेल देखो हमने सॉल्व किया है। ये कितना आया बताओ, जब कितना आया ई सेल सॉल्व किया सबने? एक मिनट, कितना आया ई सेल, कितना आया? 0.822, सब अलग अलग बता रहे हैं। 0.831, ओके ठीक है। तो सी दिस वैल्यू इज 0.84 plus 0.03 log 1/4. So it is 0.04 minus 0.03 into 2 log 2. So it is 0.84 minus 0.06 into 0.3. तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.822 वोल्ट आता है। ठीक है एवरीबॉडी, सबका यही आया ना 822? ठीक है 822 आया, कोई दिक्कत है इसमें? ओके कोई देयर वाज समबडी वाज आस्किंग मी टू एक्सप्लेन इट थ्रू अ डिफरेंट मेथड, दूसरे मेथड से बताने की जरूरत है? एवरीबॉडी डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट थ्रू मेथड 2? उससे आ जाएगा। आयुष पाटिल सेज यस। ओके ठीक है, कर देते हैं, दूसरे मेथड से भी कर देते हैं। ठीक है मैं कर देता हूँ, दूसरे मेथड से कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाना है ना। फाइन, so let us see method 2। देखो ZnCl2 जो है वो डिसोसिएट होता है किस तरह से, Zn2 प्लस और 2Cl माइनस। KSP कितना दिया था मैंने? KSP क्या दिया था? 10 की पावर माइनस, डेटा देखना पड़ेगा। KSP दिया था मैंने 10 की पावर माइनस 8 दिया था। ठीक है ठीक, 10 की पावर माइनस 8 दिया। एक सेकंड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे Cl माइनस क्या है, Zn2 प्लस, और यहाँ पे Cl माइनस 1/2 स्क्वायर इस 10 की पावर माइनस 8। तो Zn2 प्लस क्या आया, ये आया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो ई सेल क्या आएगा, अब हम डायरेक्टली रिएक्शन लिख देते हैं एनोड का। Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ फोन कॉल। हेलो हेलो हेलो। ओके फाइन एवरीबॉडी, आई होप चीजें अब देखो कैसी आएंगी। E cell will be simply E naught Zn to Zn2 plus minus 0.06 by 2 log Zn2 plus. So this will become E naught Zn2 Zn2 plus minus 0.03 log 4 into 10 की पावर माइनस 8। देख लो सॉल्व करके कितना आता है। एवरीबॉडी पूरा सॉल्व करो और देखो कितना आ रहा है। एवरीबॉडी E naught एक बार बताना, E naught Zn से Zn2 प्लस कितना दिया था?
एवरीबॉडी ई नॉट जेड एन से डिजन 2 प्लस कितना दिया था 0.6 दिया था ना, ठीक। तो 0.6 माइनस 0.03 ये आ जाएगा ये आ जाएगा लॉग, एक सेकंड इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, log 4 माइनस 8, तो ये आएगा 0.03, अब ये आ जाएगा 7.4। अब देख लो कितना आ रहा है, माइनस 7.4 हो जाएगा ये, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एवरीबॉडी देख लो सेम आ रहा है अलग आ रहा है, सेम आ रहा है अलग आ रहा है, देख लो एवरीबॉडी। Everybody you can check if it is same or different, you can just check। सेम आ रहा है ना, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। स्क्रॉल अप, ओके, और स्क्रॉल अप करूं अंशुमल, और ऊपर करूं स्क्रॉल, अंशुमल इज दिस मच फाइन, ठीक है, फिर लिखो, राइट इट डाउन देन। इससे ई नॉट नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट ई सेल तो आ जाएगा ना। आगे बढ़ जाऊं मैं, स्क्रॉल करूं नीचे अब, डन। अच्छा सीएल माइनस को 1 रख के तो ई नॉट आ जाएगा ना। हाँ सीएल माइनस को 1 रखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ऑब्वियसली उस केस में तो आ जाएगा, सीएल माइनस को 1 रखोगे तो आ जाएगा उस केस में, ठीक है। एवरीबॉडी एक क्वेश्चन देता हूं मैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको सब लोग ट्राई करो, है ना। एवरीबॉडी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, बिकॉज देखो अब तक मैंने जो तुम्हें दिया है क्वेश्चन, उसमें मैंने सिर्फ हाफ सेल दिया है, कभी पूरा रिएक्शन दिया है तुम्हें? एवरीबॉडी अभी तक पूरा रिएक्शन दिया क्या? सिर्फ हाफ सेल ही दिया ना अभी तक, तो अब एक पूरा रिएक्शन देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, Al से AlCl3, हाँ ठीक है, टाइम दे देता हूँ, टाइम दे दूंगा मैं, टाइम दूंगा, टेंशन मतलब। एल्यूमिनियम से AlCl3 सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ KCl, अगेन 1/2 मोलर, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, और इधर है AlCl3 सैचुरेटेड, ठीक है, से Al सॉलिड, Ksp of AlCl3 is 10 की पावर -12, ठीक है। ई सेल निकालिए, पूरे सेल का ईएमएफ निकालिए। एवरीबॉडी कुछ अलग लग रहा है क्वेश्चन? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जस्ट ट्राई एंड सॉल्विंग। अच्छा बताओ, एनोड पे सॉल्युबल इलेक्ट्रोड है या इनसॉल्युबल है? अच्छा ये बताओ किस तरह का सेल है एवरीबॉडी, ये किस तरह का सेल है, ओवरऑल सेल कैसा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, किस तरह का सेल है एवरीबॉडी? ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, बिकॉज एनोड और कैथोड पे ओवरऑल सेम रिएक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पे और एल्यूमिनियम ही रिड्यूस हो रहा है कैथोड पे। ये बात सबको समझ में आ रही है कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ओके अच्छा ये बताओ, एनोड पे जो सेल है वो कैसा है? एनोड पे जो सेल है वो कैसा है बताओ? एनोड इनसॉल्युबल है, और कैथोड पे एवरीबॉडी, कैथोड पे क्या है? सॉल्युबल है। तो अब इतना ही करना है,
अब ये मतलब है प्रॉपर एडवांस लेवल का क्वेश्चन। जीरो 0.69। देखो सोहम, मुझे आंसर एक्चुअली पता नहीं है, तो आई वोंट बी एबल टू टेल यू, आई नीड टू सॉल्व। तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर दूं या रहने दूं? एवरीबॉडी, कैलकुलेशन आसान कर दूं या थोड़ा, या फिर रहने दूं? कैलकुलेशन आसान कर देता हूं मैं। ई नॉट की जरूरत है शांतनु? अच्छा, ई नॉट जरूरत है यहाँ पे एवरीबॉडी? डू यू नीड ई नॉट? यहाँ ई नॉट की तो जरूरत नहीं। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि कैलकुलेशन थोड़े मुश्किल हो गए, वो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बोलो तो। ई नॉट की जरूरत नहीं है, बट हाँ कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो गया इसमें। ये ले लो तुम, क्या 27 कर लो। ये 27 इंटू 10 की पावर -12 कर लो, तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 27 कर लो, तुम्हारा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है एवरीबॉडी, 27 ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 27 इंटू 10 की पावर -12। ओके एवरीबॉडी, दोनों तरफ है तो देखो, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ है तो एक ही रिएक्शन। तो हम बात कर लेते हैं एनोड की। एवरीबॉडी बात कर लेते हैं एनोड की। तो एनोड पे एल्यूमिनियम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Al3+। ठीक है, लेट्स से दिस इज एनोड +3 इलेक्ट्रॉन। लेट अस टॉक अबाउट कैथोड। हाँ, एनोड थोड़ा मुश्किल हो गया ना 27 से। अरे तुमने कोई भी, तुमने 10 की पावर -12 से ही किया है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर -12 से ही कर लो। मैंने तो वैल्यू चेंज कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अभी एल्यूमिनियम तो कट जाएगा। तुम्हें क्या मिला, ये चेक कर लेते हैं। Al3+ सॉलिड मतलब कैथोड से Al3+ एनोड। ठीक है एवरीबॉडी, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को? ई सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल तो 0 होगा ना, -0.06/3 Al3+ एनोड अपॉन Al3+ कैथोड। तो ये वाला पार्ट 0 है, सो इट इज -0.02 log Al3+ एनोड अपॉन Al3+ कैथोड। अब हम प्लस कर लेते हैं इसको, +0.02 log Al3+ कैथोड अपॉन Al3+ एनोड। अब यदि तुम ये निकाल लेते हो कि एनोड और कैथोड का Al3+ क्या है, तो तुम्हारा आंसर तो आ गया ना एवरीबॉडी। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यदि तुमने निकाल लिया कि Al3+ कैथोड पे क्या है और Al3+ एनोड पे क्या है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतना ही तो करना है। तो चलो अब निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। Al3+ कैथोड पे क्या है, Al3+ एनोड पे क्या है। ये लिखना है कि मैं स्क्रॉल कर लूं? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इधर इस साइड पे, यानी कि कैथोड की बात कर लेते हैं पहले। तो देखो कैथोड पे AlCl3 प्रॉपर डिसोसिएट होगा Al3+ और 3Cl- में। दिस इज S, दिस इज 3S। तो ये आएगा 4S क्यूब, सॉरी 4S की पावर 4, राइट? मतलब 3S की पावर 3 इंटू S इज 12 इंटू 12 में 27 इंटू 10 की पावर -12। तो ये आएगा क्या, 27 S की पावर 4 इज 27 इंटू 10 की पावर -12। 27 कैंसिल,
ये s आ जाएगा 10 की पावर -3। यहाँ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? समझ में आया s कैसे निकाला हमने Al3 प्लस कैथोड निकाल लिया ना 10 की पावर -3। इसमें किसी को डाउट है क्या? प्रथमेश तुम्हें कौन सी बात नहीं समझ में आई? प्रथमेश तुम्हें कैथोड वाली बात समझ में नहीं आई? एस कैसे निकाला? अरे एस फॉर्मूला होता है ना KSP का। Al3 मतलब देखो ये s है और ये 3s है, तो s की पावर 1 3s की पावर 3, ये तो फॉर्मूला होता है ना KSP का। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है 3s की पावर 3 इंटू s की पावर 1, तो s अपना आ गया 10 की पावर -3। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? s में किसी और को कोई डाउट है? हमने कैथोड पे Al3 प्लस का निकाल लिया, ठीक है, कैथोड निकाल लिया हमने। अब देखो क्या है, एनोड की बात करेंगे थोड़ा। तो एनोड पे थोड़ा पंगा है, कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है, मेन हीरो साइड हीरो वाली कहानी है, ठीक है। तो अब बेचारा AlCl3 साइड हीरो बन के रह जाएगा। यहाँ पे Al3 प्लस 1/2 दिया है ना एवरीबॉडी, यहाँ 1/2 दिया है ना क्वेश्चन में, देखो एक बार, क्योंकि मैंने स्क्रॉल डाउन कर लिया है। एवरीबॉडी 1/2 दिया है ना Cl माइनस, हाँ ठीक है। अब देखो क्या है, Al3 प्लस एनोड इंटू 1/8 इज इक्वल टू 10 की पावर -8 इंटू 27, यही है ना? 10 की पावर -8 नहीं दिया, -12 दिया है, राइट? तो क्योंकि 1/2 की पावर 3 हो जाएगा ना 8, तो ये आ जाएगा 27 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -12। अभी भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मुश्किल नहीं हुआ, बिकॉज लॉग लोगे तो 27 और 8 की तो हो ही जाएगा ना, 3 की पावर 3 2 की पावर 3 वैसे तो हो ही जाएगा। कैलकुलेशन तुम अभी भी कर सकते हो, ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ है। एवरीबॉडी, तो एनोड कैथोड पे हमने कैसे निकाला, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये लिख लो जल्दी से, राइट इट डाउन एवरीवन। रिटन एवरीवन, सबने लिख लिया? ओके, अब देखो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.02 log Al3 प्लस कैथोड, ये आया 10 की पावर -3 और ये आया 27 इंटू 8। हाँ ये एडवांस का ही क्वेश्चन था, मतलब एडवांस लेवल का था, ठीक है। तो ये आ गया 10 की पावर -12। ये आ जाएगा क्या एवरीबॉडी, आ गया हाँ log 10 की पावर +9 हो जाएगा ये 27 इंटू 8, राइट। ये आ जाएगा 0.02 log 10 की पावर 9 माइनस log 27 इंटू 8, राइट। सो ये क्या आएगा, ये आएगा 9 माइनस 3 log 3 माइनस 3 log 2। एवरीबॉडी कोई दिक्कत है इसमें? इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझने में कोई तकलीफ है? यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। अब तो सॉल्व कर लोगे ना, और आगे का तो कैलकुलेशन कर ही लोगे ना, आगे भी करके दिखाऊं मैं? ठीक है, देखो कितना आता है, ठीक है। 0.13 जो भी है उसी के आसपास, 0.133 उसके आसपास है ना। लास्ट वाला कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरा वो लास्ट वाला कैलकुलेशन देख लेना कितना आ रहा है, 0.02 इंटू 6.69 कितना है वो देख कर लेना एक बार, ठीक है। बट ये तुम्हारा आंसर है।
ओके एवरीबॉडी, कैसे करना है सर? इसका ई नॉट बता दो M1 से, मतलब नमन क्या पूछना चाह रहे हो तुम? मेथड 1 से? अरे इसका ई नॉट 0 होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना ये नमन, इसका कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो ये ई नॉट तो 0 ही होगा। इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? ठीक है, अभी मैं एक होमवर्क, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। वो होमवर्क है, उसको लिख लेना, क्यों नहीं हो पाएगा, अभी 2-3 मिनट 4 मिनट है हमारे पास। क्वेश्चन है, लेट अस राइट इट। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये एक सेल है Ag सॉलिड, AgBr सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ Br माइनस एक्वस। ठीक है, ये फिर AgCl सॉलिड Cl माइनस एक्वस के प्रेजेंस में ये Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये हम आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हैं, हम Cl माइनस पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ इनसॉल्युबल है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इधर भी इनसॉल्युबल है और इधर भी इनसॉल्युबल है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? दोनों तरफ इनसॉल्युबल है। टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन लिया हुआ है। ठीक है, KSP AgBr के लिए दैट इज 5 into 10 की पावर माइनस 13 एंड KSP AgCl के लिए इट इज 1 into 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, तो पूछ रहा है एट व्हाट Br minus upon Cl minus will E cell become 0? Is that clear? किस Br minus Cl minus पे E cell 0 हो जाएगा? That is the question. Just write it down. ऑप्शन चाहिए क्या? ऑप्शन चाहिए? नहीं, ये होमवर्क है तुम्हारा, पहले अभी लिख लो। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया होगा तो वहां कर लेना। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया एक तरह से कॉमन एंड इफेक्टिव टाइप का तो होता है। एवरीबॉडी क्वेश्चन रिटन? एवरीबॉडी सबने क्वेश्चन लिख लिया? तो देखो आज हमने जो पढ़ा है टॉपिक, दैट इज काइंड ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया बोल रहा हूँ, कॉमन एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। अब देखो ये जो मेटल इनसॉल्युबल टॉपिक है, ये एक्चुअली बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, ये पूरा बच्चों को तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही टॉपिक लगता है पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कॉमन एंड इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन एंड इफेक्ट। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा एवरीबॉडी? आज के क्लास में हमने क्या सीखा है? हाँ, ये अधर भी एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर 200। अरे आंसर निकाल लिया तुमने? देख लेता हूँ क्या है आंसर इसका। नहीं, आंसर 1/200 है तन्मय, आंसर इज 1/200। तुमने 200 निकाला है क्या? आंसर 1/200 है। हाँ, 0.005 दैट इज द आंसर। गुड, आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं, बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि आंसर क्या, उन्होंने पूछा कि आंसर ये है क्या, तो मैंने बता दिया, उन्होंने अभी सॉल्व कर लिया इतनी देर में। ठीक है, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को वीकेजे का डिस्कशन करना है, मतलब वीकेजे का कोऑर्डिनेशन का डिस्कशन करना है? रिक्वायर्ड है तो बोलो, कल मैं शाम को रखूंगा। ठीक है, मैं टाइमिंग डाल दूंगा कल। परसों रखूं? परसों तो तुम लोग का टेस्ट है ना अभिलाषा, तुम लोग का परसों तो टेस्ट है, टेस्ट के पहले रखूं या टेस्ट के बाद में रखूं? ठीक है, आई कम्युनिकेट द टाइम। देखो आज के क्लास में जो हमने सीखा है वो मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, ज्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं है। मेन हीरो आएगा, साइड हीरो बिहेव करेगा जैसे वो हीरो था नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। तो AgCl में KCl डाल दोगे तो AgCl सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, फाइन। So I'll communicate the homework to you in the group. Fine, everybody, have you written the question? ठीक, किसी को कोई डाउट है आज के क्लास में? ठीक है, फिर यू कैन लीव। गुड बाय।